Good morning, children. This is Vaibhav Kulkarni, TGT Maths, Jawahar Navodaya Vidyalaya, Usmanabad, Taluka Turzapur. Actually, you might have seen so far so many videos I have prepared on class 9th standard Maths, class 10th standard Maths. My target is to finish off this 9th standard Maths as well as 10th standard Maths for the students. And along with that, I have also prepared some videos called as Basic Maths for All, in which so far I have almost completed 20 videos and I will be taking up to 40 videos. So the content of the videos is to help the students who are having the problems in their basics. If the students see those basics and they try to do the problems of 9th and 10th standard, I feel that they will feel 9th and standard Maths very easy, because as an experienced teacher from last 26 years and plus some 3 years outside Navodaya, I have come to know some of the difficulties that the student face when they come in 9th and 10th standard. So with that intention, I have prepared the videos for Basic Maths also. Now this Basic Maths video can be seen even by 6th standard students, 7th standard students, 8th standard students, 9th standard students and 10th standard students. My channel name, as you all know, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. This is my channel name. The purpose of making this channel is to give standard coaching to the students who are suffering a lot because of this corona pandemics. Students are finding it very difficult to get the teachers. Most of the colleges are closed, most of the schools are closed, and in that context, students should be able to do maths. With that noble intention, this channel has been started. So I hope you might have already started seeing my channel. I want that you should subscribe it, share it, and even you can share your comments so that we can have an interactive class through mobile and through my internet, through my YouTube channel, Maths Made Easy with Vaibhav Kulkarni. And again, one good news that I am going to give you all, dear children, is I am also shortly starting this on my Facebook also. So shortly you will be seeing me on the Facebook also. You need to search for my page and then you click on my page and then you will get all the updates on the Facebook also. So dear children, try to understand the noble intention and share with as many people as you can. And you are free to share your views in the comments. Welcome you all to day 28 of Basic Maths for All. It is day 28, and if you remember, we stopped with the cylinder we stopped, and I told you how cylinder should be linked with what you know. Cylinder means what? Circles compiled over each other. I have given you the best example of papad. पापड़ का आता है पाई आर स्क्वायर, 10 पापड़ है तो पाई आर स्क्वायर इंटू 10, और पापड़ का सरकमफ्रेंस आता है 2 पाई आर, 10 पापड़ है तो 2 पाई आर इंटू 20, 10 तो 20 पाई आर स्क्वायर. तो अब पापड़ के बाद अब हम आ रहे हैं कोन की तरफ. वैसे आपको फॉर्मूला तो किसी भी किताब में मिल जाएगा, मगर जो टेक्निक मैं आपको बता रहा हूँ शायद मिलना मुश्किल है. तो फार्मूला आप किसी भी इंटरनेट पे जाओगे, कहीं पर भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा, मगर मैंने कुछ उसके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करके एक नया टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ. तो पहले देखिए, वॉल्यूम ऑफ अ कोन, इसका फॉर्मूला कैसे याद रखें. स्पीयर तक मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है कि कैसे याद रखना है. अब कोन को कैसे याद रखना है, 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर. इस तरह से याद रखिए, आप बाय हार्ट मत कीजिए. बच्चे क्या करते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच करते हैं, वैसे मत करो. सर वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर का है पाई आर स्क्वायर एच, उसको 3 से डिवाइड कीजिए. मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है, जैसे आप देखिए कि एक कोन है, 2 कोन है, 3 कोन है. ये ब्लैक वाला उसमें डाल दिया, ब्लू वाला उसके अंदर डाल दिया और लाल वाला इसके अंदर डाल दिया, तब जाके ये क्या हो रहा है, सिलेंडर भर रहा है. यानी 3 बार अगर कोन को हम अंदर डालेंगे तो हमें वो पूरा स्पीयर भरा हुआ मिलेगा, यानी 1/3 होगा. एक कोन का होगा 1/3. इसमें मैं आपको एक बचपन की मेरी कहानी में जोड़ना चाहूँगा, और जब भी आप ये फॉर्मूला करोगे या जब भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ तो ये कहानी मैं बच्चों को अक्सर बताता हूँ
कहानी ऐसे बच्चों की, जब हम बचपन में एक पेड़ के नीचे, बेर के पेड़ के नीचे हम लोग बेर खाते थे, तो वहाँ पर कोई बेर बेचने वाली जो औरत थी, वो उसने क्या करा था, इस तरह के दो टाइप के मेजरिंग सिलेंडर्स उसके पास थे, एक कोन वाला था और एक सिलेंडर वाला था। तो वो क्या करती थी, सिलेंडर वाले को हमेशा गंदा रखती थी और कोन वाले को हमेशा साफ रखती थी। और हमसे वो पूछती थी कि बेटा ये भी 4 आने का है और ये भी 4 आने का है, बेर किस में चाहिए तुम्हें। हम लोग बचपन छोटे थे तो हम अक्सर बोलते थे, क्योंकि ये काफ़ी आकर्षक होता था तो हम इसको बोलते थे और कुछ बच्चे इसका लेते थे। मगर आज जब मैं टीचर बन चुका हूँ तो मुझे पता चल गया कि वो हमें 8 पैसे का बेर देती थी। एक्चुअली इस बेर को ये भी 4 आना था और ये भी 4 आना था, मगर हमें मिलता था कितने का, 8 पैसे का मिलता था, क्योंकि ये 3 बार डालने के बाद आ जाता है। तो आज जब मैंने इस बात को जब भी याद करता हूँ तो मुझे लगता है कि वो जो जिसको मैथ्स नहीं आता ऐसे समझते हैं, मेरे ख्याल से वॉल्यूम अच्छी तरह से जानती थी। तो इस सिलसिले की स्टोरी को आप याद रखिए मेरा, कि 3 बार जब कोन का वॉल्यूम डालते हैं और सेम रेडियस होना चाहिए। दूसरी एक बात मैं आपको बताना पिछली बार भूल गया, इस बार आपको याद दिला दूं, इसको राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। राइट सर्कुलर कोन इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए ये हाइट और रेडियस परपेंडिकुलर होता है। कोन तो दूसरे भी होते हैं, जैसे जोकर की टोपी होती है, आप देखिए इस तरह का कोन होता है, वो राइट सर्कुलर नहीं होता, बिकॉज हाइट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो हाइट जहाँ पर परपेंडिकुलर होता है उसको राइट सर्कुलर कोन, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहा जाता है। आमतौर पे इट इज़ नॉट यूज्ड, मगर अगर यूज़ करते हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है बच्चों कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कोन के अंदर देखिए आप पाई आर एल, पाई का मतलब होता है आप जानते हो, रेडियस आप जानते हो, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। एक्चुअली 2 प्रकार के हाइट होते हैं, इसको बोलते हैं वर्टिकल हाइट और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट, तो अगर आप पाई आर एल ले लोगे तो आपको स्लैंट हाइट मिलेगा। सर स्लैंट हाइट कैसे ढूंढ सकते हैं, आप पाइथागोरस का थ्योरम जानते हो बच्चों, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो L = h² + r² अगर आप करोगे तो आपको स्लैंट हाइट मिलेगा। तो कोन के बारे में। नेक्स्ट आता है कर्ड सरफेस, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का मतलब होता है कोन का सारा सरफेस। आप अगर आइसक्रीम लेते हो बच्चों तो आइसक्रीम के ऊपर क्या होता है, कोन देते हैं, ऊपर ढकने के लिए कागज देते हैं, यानी सारा कर्ड सरफेस एरिया भी आ गया, ऊपर वाला सर्कल भी आ गया। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस। और ये बेस कौन सा है, हमारे कोन का बेस कौन सा होता है बच्चों, सर्कुलर बेस होता है। तो कर्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल और एरिया ऑफ द बेस का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। तो इसके अंदर अगर मैंने पाई आर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में बचेगा L + r। मगर बच्चे गलती क्या करते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन = पाई आर × ब्रैकेट L + r। टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन = पाई आर × ब्रैकेट L + r। ना, दैट इज द रॉन्ग मेथड। आप क्या कीजिए, फॉर्मूले को डिराइव कीजिए। कैसे डिराइव करोगे आप, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है कोन का कर्ड सरफेस एरिया प्लस कोन का सर्कल, यानी पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। इस तरह से फॉर्मूले को, हर फॉर्मूले को डिराइव करो, बाय हार्ट गलती से मत करो। नेक्स्ट आता है बच्चों वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इस फॉर्मूले को थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा, वैसे कुछ एक्सपेरिमेंट्स आपकी किताब में दे रखे हैं उन्होंने। नेक्स्ट स्फीयर की जब बात आती है तो उसके साथ हेमिस्फीयर आता है। हमेशा हेमिस्फीयर, स्फीयर को याद रखो, हेमिस्फीयर को उसके साथ फ्री मिलेगा। हेमिस्फीयर में क्या होगा, हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर। ये इसी तरह से याद रखिए आप, इसको याद रखो, ये फ्री में मिलो। तो ये 1/2 होगा बच्चों, 2 1s are 2, 2 2s are 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए मैं फिर से एक बार आपको याद दिला दूं कि कोन की जब बारी आती है बच्चों, तो कोन में मैंने आपको बताया था, वो कहानी बताई थी आपको कि हमारे बचपन वाली, कि कोन के 3 बार अगर आप सिलेंडर में डालोगे पानी भर के या कुछ लिक्विड भर के तो वो सिलेंडर भर जाएगा, यानी एक कोन का वॉल्यूम जो होगा वो सिलेंडर का 1/3 होगा। बाद में जब कर्ड सरफेस एरिया की बात आती है तो पाई आर एल आता है। अगर यल की बात आती है तो यल होता है स्लैंट हाइट, उसका फॉर्मूला है √h² + r²। टोटल सरफेस एरिया की जब बात आती है तो वहां पर आपको कंपलसरी ये लिखिएगा, क्या लिखिएगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस या एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस।
उसके बाद स्पीयर का जब फॉर्मूला आएगा तो 4/3 पाई आर क्यूब। तो जब हेमिस्फीयर की बात आएगी तो हाफ इंटू वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर करोगे। नेक्स्ट आता है कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण बता सकता हूँ, आप इसको कैसे कर सकते हो। देखो स्पीयर के लिए क्या कीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए और उसके ऊपर के सारे छिलके आप निकाल लो। मान लीजिए आपने एक ऑरेंज ले लिया जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। समझ में आ रही है आपको बात? आप क्या कीजिए, एक ऑरेंज ले लीजिए जिसका रेडियस है 5 सेंटीमीटर। तो आप क्या करो, बाद में 5 सेंटीमीटर के सारे सर्कल्स बनाओ नोटबुक के अंदर, और उसके सारे छिलके आप क्या करो, ये हमारा ऑरेंज है, ये सारे छिलके हमने डाले हैं। तो आप पाओगे बच्चों कि तुम्हारा जो ऑरेंज का छिलका है वो चारे सर्कल्स को कवर करेगा, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल। तो स्पीयर के लिए आपको याद क्या रखना है, देखिए जो बात आपको पता है वहीं से आपको नई बात सीखनी है। सर्कल का एरिया आपको पता है, तो ऑरेंज के लिए आप क्या करोगे, 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल, यानी 4 इंटू एरिया ऑफ अ सर्कल करोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ये होगा आपका कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर का फॉर्मूला। अब यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया की तो बात ही नहीं आती है। नेक्स्ट आता है हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर की जब बात आती है बच्चों, तो हेमिस्फीयर, स्पीयर अगर याद रखोगे तो हेमिस्फीयर उसके साथ फ्री आ जाएगा। यानी स्पीयर को मैंने कैसे याद रखने के लिए बताया कि एक ऑरेंज ले लीजिए, या फिर कोई भी स्पेरिकल आप ले लीजिए, कोई भी स्पेरिकल फ्रूट आप ले लीजिए, उस फ्रूट का सारा छिलका आप निकाल लो और अंदाज़ा से आप क्या करो, उसका रेडियस निकाल लो और 4 सर्कल्स आप बनाइए। तो वो जो भी छिलका होगा वो सारा छिलका चारे सर्कल के अंदर कवर होगा। इसी तरह का एक्सपेरिमेंट एक आपके क्लास 9 की किताब में भी बताया। उन्होंने क्या किया है कि एक स्पीयर लिया है और उसके ऊपर एक खील ठोक कर उन्होंने क्या किया, रस्सी को उसको पूरी लपेट लिया है, बाद में सारा रस्सी को निकाल दिया और फिर उस रस्सी को चारों सर्कल्स के अंदर भर दिया। तो उन्होंने क्या पाया कि जो स्पीयर को कवर करने वाली रस्सी का जो लेंथ है वो पूरा सर्कल को कवर कर रहा है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है, मगर वो स्पीयर लेके रस्सी लेना अगर संभव है तो वो एक्सपेरिमेंट भी आप कीजिए। खैर मेरी बात आपके समझ में आ गया होगी कि स्पीयर का अगर कर्ड सरफेस एरिया याद रखना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ अ सर्कल, इस फॉर्मूले का उपयोग आपको करना पड़ेगा। तो हेमिस्फीयर की जब बात आती है तो हाफ इंटू कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर करोगे तो हाफ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर करोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट, ये फॉर्मूला बहुत बच्चे भूल जाते हैं, सर आपने टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ स्पीयर नहीं कहा, क्या जरूरत है भाई, स्पीयर का सारा सरफेस ही कर्ड सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया सेम हो जाता है बच्चों। आप जरा सोचिए, एक मैं बेस्ट एग्जांपल आपको बताऊंगा, वाटरमेलन बोलते हैं ना, कलिंगड़ को क्या बोलते हैं, वाटरमेलन बोलते हैं कलिंगड़ को। तो वो वाटरमेलन जो होता है, आप देखिए उसका हरा वाला सारा पार्ट जो है वो कर्ड सरफेस एरिया भी है, टोटल सरफेस एरिया भी है। मगर अगर आप काट दोगे, अगर आप उसे काट दोगे तो हरा वाला सरफेस एरिया अलग हो जाएगा और लाल वाला सरफेस अलग होगा। यानी आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया चाहिए तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द सर्कल वो होगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एरिया ऑफ अ सर्कल कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, है ना 3 पाई आर स्क्वायर। फिर से मैं बता दूं, हरा वाला कलिंगड़ होता है ना, ग्रीन कलर का कलिंगड़ जिसे हम बोलते हैं, उसको आप काट दोगे बच्चों तो कलिंगड़ में 2 पार्ट होता है, एक तो हरा वाला होता है बाहर वाला और अंदर होता है लाल पार्ट का। अगर मैंने कलिंगड़ को आधा काट दिया तो वो हेमिस्फीयर हो जाएगा। तो हरा वाला पार्ट का होगा 2 पाई आर स्क्वायर और ऊपर वाला लाल पार्ट होगा 1 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस ये लाल का 1 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर के अंदर अब 1 पाई आर स्क्वायर मैं जोड़ दूं तो 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और वो हो जाएगा तुम्हारा कर्ड सरफेस एरिया ऑफ व्हाट इज इट, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। इसके ऊपर क्वेश्चन अक्सर बच्चों को पूछते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर तो होता ही नहीं, होता है, स्फीयर का नहीं होता है, हेमिस्फीयर का होता है। नेक्स्ट आता है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ अ कोन। सर इसको कैसे याद करोगे आप, इसको देखिए, फ्रस्टम ऑफ अ कोन का मतलब क्या होता है ये देखिए। इस बार तो वैसे सिलेबस में से इसको हटा दिया गया है सीबीएसई के, मगर फिर भी क्योंकि ये बेसिक मैथ्स है, आपको जानकारी रखने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काम बाद में आपको कहीं पर भी आ सकता है। तो देखिए कोन की जब बात करते हैं तो कोन का मतलब होता है ऐसे, इस तरह से अगर कोन को हमने काट दिया ऊपर से, इफ यू कट द टॉप ऑफ द कोन पैरेलल टू द बेस, if you cut the top of the cone parallel to the base, तो the figure that you are going to get is this one। तो ये फिगर, इसको हम बोलते हैं फ्रस्टम ऑफ अ कोन। व्हाट इज इट, फ्रस्टम ऑफ अ कोन।
तो इसके अंदर जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो आप पानी पीने का ग्लास जो पीते हैं वो है, नहाने के लिए बकेट जो इस्तेमाल करते हैं आप, वो फ्रस्टम का एग्जांपल हो सकता है। तो इस तरह से एग्जांपल मैं आपको फ्रस्टम का दे सकता हूं। उसके अंदर होता है एक स्मॉलर रेडियस, एक ग्रेटर रेडियस। ग्रेटर रेडियस को हम कहेंगे स्मॉल आर, छोटे वाले को कहेंगे स्मॉल एच, स्मॉल आर, हाइट को कहेंगे एच और ये। तो देखिए इसको मैंने जानबूझ के इसके सामने लिखा है। इसको याद रखने का तरीका क्या है, कोन को याद रखिए, फ्रस्टम सिंपल हो जाएगा। कैसे सर, 1/3 पाई यहाँ पर भी है, 1/3 पाई यहाँ पर भी है। सर एच यहाँ पर एक एच रह गया बच्चों, एच लिखना पड़ेगा मुझे। 1/3 पाई इंटू क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 1/3 पाई। आर यहाँ पर भी है, आर वहाँ पर भी है, मगर यहाँ कितने आर है बच्चों, यहाँ पर 2 आर है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस दूसरा आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर, और मल्टीप्लाइड बाय क्या होगा, वो एच होगा। वो क्या मिलेगा आपको, वॉल्यूम मिलेगा। तो क्या किया हमने, कोन को याद रखा, 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच। फिर सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आप करोगे तो देखिए कोन का क्या है, पाई आर एल है। यहाँ पर कितने आर है, यहाँ पर 2 आर है, तो आर प्लस आर हो जाएगा। यानी मैं ऐसे बोलूंगा कि बाई कोन गेट फ्रस्टम फ्री, चलेगा, चलेगा, यस सर, बाई कोन गेट फ्रस्टम फ्री। तो यहाँ पाई आर एल है, तो यहाँ पर क्या होगा, पाई आर इंटू ब्रैकेट, पाई इंटू ब्रैकेट आर प्लस आर इंटू एल। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन आएगा। तो यहाँ पर कोन नहीं कहेंगे हम, इसको कोन कहना गलत हो जाएगा, हम इसको कहेंगे फ्रस्टम ऑफ अ कोन। व्हाट विल से, फ्रस्टम ऑफ अ कोन, फ्रस्टम ऑफ अ कोन। अगर हम इसका टोटल सरफेस एरिया ढूंढने की कोशिश करेंगे बच्चों, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बिगर सर्कल प्लस एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, पाई आर प्लस आर कर्ड सरफेस एरिया के लिए, बिगर सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है, स्मॉल सर्कल के लिए पाई आर स्क्वायर है। तो आप इसको पाई कॉमन ले लीजिए, आर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। अब यल का फॉर्मूला आप जानते हो, √h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम यल के लिए क्या करते हैं, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर करते हैं। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो बच्चों, सारा फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। तो मैं फिर से एक बार आपको जाने से पहले रिवाइज करा देता हूँ। कोन के लिए आप कैसे याद करोगे, थोड़ा ध्यान देना बच्चों। कोन के लिए मैंने आपको बताया था कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन के लिए आप क्या करो, स्पीयर को 1/3 से डिवाइड करो। और स्पीयर के लिए मैंने आपको बताया था सर्कल और पापड़ वाला, चपाती पापड़ वगैरह, वो उसको फॉर्मूले को याद रखना है। तो पाई आर स्क्वायर एच स्पीयर का है, तो 1/3। कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन का करोगे, कर्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन को करोगे तो क्या होगा, पाई आर एल होगा। तो इसको स्लैंट हाइट करोगे तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा। फिर टोटल सरफेस एरिया करोगे तो कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ द बेस होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ अ स्पीयर करोगे तो स्पीयर के लिए फॉर्मूला क्या है, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। फिर वॉल्यूम ऑफ अ हेमिस्फीयर करोगे तो उसका आधा होगा। और कर्ड सरफेस एरिया पर स्पीयर के लिए मैंने आपको एग्जांपल बताया था, ऑरेंज वाला एग्जांपल बताया था, जिसके अंदर आपको बताया था कि ऑरेंज के छिलके अगर आप निकाल के 4 सर्कल में डाल दोगे तो सारे ऑरेंज के छिलके, आप करके देख लीजिए, आप अगर यकीन नहीं होता है तो आप करके देख लीजिए एक्सपेरिमेंट, आपको मिलेगा कि ऑरेंज के सारे छिलके इसके अंदर सही बैठते हैं। कोन के लिए मैंने आपको क्या बताया था, फ्रस्टम ऑफ कोन के लिए कोन याद रखिए आप, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच अगर है तो वहाँ पर आर स्क्वायर प्लस आर आर इंटू एच है। कर्ड सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए तो यहाँ पाई आर एल है, तो यहाँ पाई आर प्लस आर इंटू एल है। टोटल सरफेस एरिया अगर आपको चाहिए तो क्या करोगे, कर्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बिग सर्कल प्लस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। स्लैंट हाइट अगर आपको चाहिए तो एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। तो ये हमारा सारा फॉर्मूला है। ये फार्मूला आपको शायद 8th स्टैंडर्ड से शुरू होता है, 8th से 7th स्टैंडर्ड से भी कुछ हद तक शुरू होता है, फिर 8th में भी आपको काम आता है, 9th में भी आपके काम आता है, और 10th में भी आपको ये काम आता है। तो ओके बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।